Hello friends, my name is Smith Solanki and let's start the first lecture of PYQ series. Let's start. So this is our first question. Okay, so then let's read the question. The acceleration of an electron due to mutual attraction between the electron and a proton when they are okay. So what question says we have to find the acceleration of electron, and what we are given, there is an electron and there is proton which is 1.6 angstrom apart. So we have to find the acceleration of electron. As we know, this is a negatively charged and this is positively charged. So proton attracts the electron towards it by electrostatic force. Okay, and we have to find that acceleration due to the electrostatic force. Okay, so what is a electrostatic force? That is equals to k q1 q2 by r square, and k is nothing, just a 1 by 4 pi epsilon naught, and q1 is charge on electron, that is E, and q2 also charge, magnitude of charge of electron, magnitude of charge on proton, and r square is the distance between them, which is 1.6 angstrom. angstrom को मीटर में चेंज कर लेंगे, that is, and it is whole square. Okay, so we are solving it. Put the value 1 by 4 pi epsilon, that is given 9 into 10 to the power 9, and e value will be given as 1.6 into 10 to the power minus 19 का whole square, and denominator में भी 1.6 into 10 to the power minus 10 का whole square. एम सिंपली 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में बचेगा हमारे पास 10 की पावर 9, एंड इधर से 10 की पावर minus 38, and in denominator what is left, 10 की पावर minus 20. So by solving it we get 9 into 10 की पावर 38 में से 20 का कितना बचा, 18 में से 10 की पावर minus 9 न्यूटन. But we have to find the acceleration. So as we know that what is force? Force is nothing, the mass into acceleration. We have force value 9 into 10 to the power minus 9. Mass of electron, that is 9 into 10 to the power minus 31 kg. And what is acceleration? We have to find the acceleration of electron. 9 to 9 cancel out. Acceleration of electron comes out 10 to the power minus 9 divided by 10 to the power minus 31. After solving it, we get this. That is comes out 10 to the power 22 meter per second square. That is our answer. Thank you. And that is option number C. Okay. Okay, this is our second lecture of PYQ series. और इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इट सेज, 2 point charges A and B having a charges. So A पर चार्ज कैसा है हमारे पास, प्लस क्यू, एंड B पर चार्ज कैसा है, माइनस क्यू. ओके, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. ओके, कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिए गए. मान लीजिए A चार्ज यहाँ पर रखा है और B चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इनके बीच में एक्ट होने वाली फोर्स कितनी है, F लग रही है. ठीक है, सिंपल. सेकंड, ये फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में क्या कर रही है, 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी. ए का 25% चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया गया, तो बी के पास कितना बचेगा, मान लीजिए ए का 25% कितना होगा, 25% ऑफ प्लस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 प्लस का इतना चार्ज बी को भेज देंगे. बी पर चार्ज कितना है ऑलरेडी, बी पर चार्ज हमारे पास माइनस क्यू, और इतना और भेज दिया मैंने. सो कितना बचा इसके पास, -3 क्यू बाई 4, एंड ए पर कितना बचा होगा, 3 क्यू बाई 4 प्लस का. सो सेकंड केस में हमारे पास चार्जेस क्या क्या है, प्लस का 3 क्यू बाई 4 एंड माइनस का 3 क्यू बाई 4. और सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रखी है, मीडियम एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम. सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे. हमें फोर्स का, इसकी फोर्स चेंज हो गई कुछ, एफ डैश हो गई होगी, कितनी हुई होगी, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. Q1 Q2 कितना है यहाँ पर हमारे पास, के 3 क्यू बाई 4 टाइम्स 3 क्यू बाई 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो 3 बाई 4 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारे पास, एंड ये बन जाएगा मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. और एफ क्या था मेरे पास, एफ यही तो था हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो सिंपली हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 एफ. सो न्यू एफ डैश क्या है हमारे पास, 9/16 है. दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू. Hello friends, welcome to the new lecture. We will discussing in this lecture question number 3. So what question number 3 says, suppose the charge of a proton and electron differ by slightly. Okay, मान लीजिए कोई एटम है हमारे पास, इसमें गिवन है जैसे सपोज हाइड्रोजन एटम है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है. अब इसने बोला कि इन जनरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होता है, सेम चार्ज ई कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर उसने बोला इनका चार्जेस स्लाइटली डिफर कर रहा है, स्लाइटली डिफर. ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था इस क्वेश्चन में, हिडन. ओके, वन ऑफ देम इज चार्ज माइनस ई एंड अदर इज, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे को कितना दिया है, क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस ई, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्यू ऑफ प्रोटॉन विल बी ई प्लस डेल्टा ई. ओके,
if the net electrostatic force and the gravitational force between two hydrogen atom, okay, at a distance d much greater than the atomic size, ठीक है, apart is zero, okay, उन्होंने बोला कि मान लीजिए अगर हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स देखें दो हाइड्रोजन एटम्स की, हाइड्रोजन दो एटम्स है, मान लीजिए H2 एटम है, सो वो जीरो आ रही है हमारे पास इन दोनों का सम, सो हमें वो फाइंड करना है कि कितना चार्ज होगा डिफरेंस इनके बीच में, डेल्टा ई फाइंड करना है। इतना पॉइंट क्लियर है क्वेश्चन सबको? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी हमारे पास, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज द Q, Q इज अ चार्ज ऑन, Q नेट चार्ज ऑन, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पे कितना चार्ज है, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Q ऑफ प्रोटॉन, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास, माइनस का ही, एंड Q ऑफ प्रोटॉन E प्लस डेल्टा ई, सो नेट चार्ज कितना हाइड्रोजन पे, डेल्टा ई, सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, K डेल्टा ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेट्स सी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है हमारे पास, G m1 m2 by R स्क्वायर, एंड m इज अ मास ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स का मास, सो G m स्क्वायर एटम्स का मास डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब इन दोनों का सम जीरो होता है, indirectly these are equal, electrostatic force and gravitational force equal दिए इस सिनेरियो में, सो ये मेरे पास k डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू g m a स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास डेल्टा ई का स्क्वायर कितना बन जाएगा, g m a स्क्वायर डिवाइड बाय k, सो दैट इज आवर डेल्टा ई का होल स्क्वायर। सो हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू, मास ऑफ एटम दिया है ये सब, और जब हम सोल्व करेंगे नियरली मेरे पास डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस 37, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे आएगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 की पावर माइनस 27 ऑर्डर का, ओके मैं आपको स्लाइडली बता देता हूँ। जी की वैल्यू कितनी होती है हमारा 6.6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और ये मेरे को कितना दिया था 10 की पावर माइनस 27 ऑर्डर का, और इसका स्क्वायर है, सो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 54, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, सो 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये माइनस 20 बन जाएगा, और ये इधर से माइनस का और 54 आ रहा होगा, माइनस का 54 माइनस 74 के आसपास। अब इसका रूट ले लेना है आपको, हाफ करोगे तो कितना आ रहा होगा, नियरली 37 के आसपास हो रहा होगा 10 का ऑर्डर, उस हिसाब का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hello student, welcome to the new lecture, that is question number 4. Let's start the question. What question says, two identical charged pairs suspended from a common point by two massless strings. Okay, मान लीजिए क्या हो रहा है इस सिनेरियो में, हमारे पास किसी पॉइंट से दो मासलेस स्ट्रिंग आ रही है और यहाँ पर दो आइडेंटिकल चार्ज लटका रखे हैं, ठीक है, मान लीजिए देता हूँ मैं क्यू चार्ज है दोनों में और दोनों आइडेंटिकल, ओके, एंड नाउ लेंथ इनकी की है एल, ओके, इनिशियली ये मान लीजिए कि किसी डी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, और चार्जेस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ रहा होगा, ये दोनों सेम चार्जेस तो रिपल्शन वाला फोर्स आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड, एंड अब इन्होंने बोला कि जो डी है वो बहुत छोटा है एल से हमारे, ठीक है, ये वाला जंक्शन मान के चलता है, मतलब ये बहुत ऐसा समझ सकते हैं हम इसको, ये मान लीजिए यहाँ और ये मान लीजिए यहाँ, तो ये एल बहुत बड़ा होगा और ये डी छोटा होगा, ओके, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। अब क्या हो रहा है, चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स, ओके, मान लीजिए इससे भी चार्ज निकल रहा है और इससे भी चार्ज निकलने लग रहा है, ठीक है, विद अ कॉन्स्टेंट रेट, मतलब कि डी क्यू बाई डी टी जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट रेट से लीक हो रहा है, चार्ज लीक, ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है, एज अ रिजल्ट द स्पेयर अप्रोचेज, ओके, अब ये वाला स्पेयर है, चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, जिसके कारण ये इस साइड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, अब हमें बताना है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। ओके, मान लीजिए अभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था जब डी डिस्टेंस दूर था, अभी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहा, अब इसका सिनेरियो कैसा हो गया, ये स्पेयर यहाँ आ चुका है विद सम चार्जेस क्यू डैश, आई डोंट नो, यहाँ पर भी क्यू डैश चार्ज मान लेता हूँ मैं, और ये एक्स डिस्टेंस आ चुका है कुछ एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली लेंथ मेरे पास एल है, ये 90 डिग्री है, ये मैं मान लेता हूँ कुछ थीटा है रैंडमली, थीटा, सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स बाई टू होगा, ये भी एक्स बाई टू होगा, ठीक है, सो ये एक्स बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि एक्स बाई फोर का अंडर, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सिंपली मेरे को पता है जो एक्स है वो बहुत कम है एल से, सो नियरली मैं इसको एल ही लिख दूँ, एल स्क्वायर का अंडर रूट एल आ जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर फोर्सेज देखूँ, इस वाले पे किधर है, इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, एम जी नीचे है। अब मैं यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ इसके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो ये भी थीटा हो जाएगा मेरे पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं टेन थीटा लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब एफ ई, और बेस मेरे पास एम जी हो जाएगा,
इतना पॉइंट सबको क्लियर है। ओके, एंड इस वाले ट्राइंगल के अंदर थीटा लिखो तो मैं क्या आता मेरे पास, यहाँ से मेरे पास टेन थीटा आ रहा है, पी पी विच इज एक्स बाई टू, कोई डाउट नहीं, और बेस वो जो कि हमारे पास एल आया। ठीक है, अब दोनों टेन थीटा को कंपेयर कर दो, थीटा तो सेम है क्योंकि, तो मेरे पास क्या था एफ ई बाई एम जी एक्स बाय टू एल। अब मैं एफ ई लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एफ ई के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और आर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, सिंपली एम जी एक्स बाय टू एल, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अब मैं इसको सब चीज़ों को एक साइड लिख लेता हूँ, तो ये क्यू तो सेम है मेरे पास, तो ये चीज़ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, के क्यू स्क्वायर एक्स क्यूब एम जी बाई टू एल, ये चीज़ बन जाएगी मेरे पास। अब यहाँ से मैं ये चीज़ वेरिएशन देखो तो क्या रहा है, क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, और सब तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, एम जी भी कांस्टेंट, टू एल भी कांस्टेंट। ओके, सो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर थ्री बाई टू, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्री बाई टू एक्स पावर हाफ आ जाएगी, थ्री बाई टू माइनस वन, एंड डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा मेरे पास, डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू वी वेलोसिटी। तो यहाँ से डी क्यू बाई डी टी तो क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है, के कोई भी कॉन्स्टेंट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू थ्री बाई टू एक्स की पावर हाफ और वी। सो यहाँ से v को मैं इधर ले आया, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, v यही रहा, ये एक्स बाई टू नीचे आएगा, वन बाई एक्स बाई टू, एंड ये कितना बन जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू फ्रॉम देयर। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ओके, दैट्स माई टाइम, थैंक यू गाइज, वेलकम फ्रेंड्स, दैट्स आवर न्यू लेक्चर इन विच वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, इसमें हमें दो कंडीशन दी है, मान लीजिए एक पेंडुलम है, सिंपली वो ऐसे हैंग हो रखा है with two spheres, okay, in which they are distance apart, and vertical distance will be y, okay, and it is in equilibrium position, okay। ये फर्स्ट केस था हमारे पास। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है मेरे से, और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया वर्टिकल एक्सिस पे, इस डिस्टेंस को y बाई टू कर दिया, सो इनके बीच का r, जैसे यहाँ पर r डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, यहाँ पर ये r डैश क्या होगा वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है मेरे को, ये अगर y बाई टू है तो। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ओके। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो मैं मान लेता हूँ, और वो भी आर डैश जो फाइंड करना है मुझे आर के टर्म्स में करना होगा, ऑब्वियसली आर डैश इन टर्म्स ऑफ आर, ओके, दैट्स आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया, सबसे फर्स्ट काम यही होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अच्छे से क्वेश्चन समझो, ओके। सो मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, एज वी नो नीचे फोर्स लग रही होगी एम जी, इस साइड लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। सो यहाँ से टेन थीटा क्या लिख सकता था मैं, टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आप देख सकते हो वहाँ से, ओके। सो ये आ जाएगा मेरे पास, और एफ ई क्या होगा मेरे पास, सिंपली के क्यू, मैं चार्ज आइडेंटिकल मान रहा हूँ, ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाय, ये मेरे पास डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, नीचे फोर्स लग रही है एम जी, ये होगा मेरे पास, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं। एंड यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा मेरे पास, इस थीटा को मैं मान लेता हूँ थीटा डैश, ओके। सो इस केस में मेरे पास टेन थीटा डैश क्या लग रहा होगा, नीचे तो एम जी अभी भी लग रही होगी, इस साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी लग रही होगी, सो वो क्या हो जाएगा मेरे पास एफ ई, इसका बट एफ ई अलग होगा, एम जी, इसका एफ ई कितना हो जाएगा मेरे पास, के क्यू स्क्वायर, चार तो आइडेंटिकल है, आर डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी, ओके। नाउ अब मैं ट्राइंगल की बातें कर लेता हूँ। इस वाले ट्राइंगल में मेरे को टेन थीटा लिखना होता है, क्या लिखूँगा मैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास आर बाई टू, और ये वाई। तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, सिंपली परपेंडिकुलर बाई बेस आर बाई टू वाई। एंड इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो मैं इसमें क्या हो रहा होगा मेरे पास, यहाँ पर थीटा डैश, और ये वाला डिस्टेंस कितना मेरे पास आर डैश बाई टू, मुझे नहीं पता आर डैश क्या है, और ये वाला वाई बाई टू। सो यहाँ पर टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, आर बाई डैश बाई टू एंड वाई बाई टू, टू से टू कट गया, सो आर डैश बाई वाई। सो मैं वैल्यू इनकी सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करता हूँ। तो टेन थीटा वाले में इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ मैं, टेन थीटा वाली को, और टेन थीटा डैश वाली को इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूँ। सो फर्स्ट में क्या आ रहा होगा मेरे पास, आर बाई टू वाई दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर बाई एम जी, ओके, आर स्क्वायर बाई एम जी। सो दैट इज आवर फिनोमिना, ओके, इन दिस। अब मैं यहाँ पर इनको कंपेयर कैसे करूँगा, एम जी तो दोनों में सेम है, तो मैं एम जी के इक्वल टू में लिख देता हूँ सारी चीज़ें, एम जी को इधर ले आया मैं, और सारी चीज़ें इधर ले आया, के क्यू स्क्वायर बाय ऊपर कितना आ जाएगा टू वाई, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक और आर आ जाएगा, तो आर 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 क्यू बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए इस साइड से, एंड ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सोल्व करूँ तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, देखते हैं, टेन थीटा डैश की वैल्यू पुट करी मैंने, आर डैश बाय वाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। फिर से मैंने एम जी को इस साइड ले आया हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाय आर डैश का होल क्यू। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी। अब मुझे बताइए एम जी तो दोनों में बराबर है, तो इक्वेशन नंबर ए और बी मेरे पास क्या होगी, इक्वल होगी।
इनको इक्वेट करता हूँ मैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2y दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर वाई बाई आर डैश का क्यूब। ओके, के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई आर डैश का क्यूब, सिंपली के क्यू स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया। सो ये आर डैश बाई क्यूब क्या आ गया मेरे पास, आर क्यूब डिवाइड बाई 2। अब इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, आर डैश मेरे पास सिंपली आर बाय क्यूब रूट ऑफ 2, दैट इज माई आंसर। ओके, सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। ओके, अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है या और भी किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।